Very good morning to all of you and welcome back. As usual, back on air. You know, nice cool morning. Huh? Nowadays you must have seen कि evenings में बड़ा अच्छा सा माहौल हो जाता है. There's a lot of winds around and कई बार तो cool winds भी. जैसे yesterday I was just saying कि evening में बड़े अच्छे, I mean like cool breeze was blowing. I mean with a little bit of rain following it. Very nice weather. Now I'm talking all these positive because let's be a little positive amongst all the other so-called negativity around. So at least कुछ मामले होने चाहिए जो कि हमें हमेशा positive रहने में मदद करे. हाँ, चलो. Like we were discussing yesterday on circular motion, and I think we just ended at a certain point. So let's start from that point. तो हमने कुछ कुछ चीजें डिफाइन किए थे. एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है. तो उसके बेसिस पे हमने एक आध प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट किए थे. So we'll start off with that question that I had given, वो clock वाला, and that is that hand reversal वाला, है ना. कि अगर मान लो इतने और बजे से इतने बजे के बीच में अगर आवर एंड मिनट एंड कहीं थे और कुछ और एक इंटरवल में वो अगर इंटरचेंज हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन जनरल. ठीक है, दैट इज वन. एक और चीज मैंने कल पॉइंट आउट किए थे, याद करके देखो. Was that कि all angles do not happen in a particular hour. Just give me a second. एक मिनट स्कूल से एक और आइडिया में डिस्कस किए थे, is that all angles within an hour does not happen twice. कुछ एक डिस्कशन हुआ था, I hope you remember. तो एक काम करते हैं, just draw the variation of angle. ठीक है ना, just draw the variation of angle with respect to time in a 1 hour interval. So like in a 1 hour interval, theta versus t. So like this is a 1 hour interval, 60 minutes. You can break it up into parts and all. they काम करो, theta versus t का एक ग्राफ बनाओ. ठीक है, of what? Theta is the angle between the hour and minute hand. ठीक है, तो theta is the angle between the hour hand and the minute hand, let's say. और तुमको theta versus t का ग्राफ बनाना है in a interval of 1 hour, let's say between 4 and 5. ठीक है, so between 4 to 5 थीटा का ग्राफ बनाओ जरा फटाफट. मैं थीटा is just the angle. 15 minutes. Theta is the angle. Just draw the graph. I think that will give you some realization yours. Okay, so I'm just giving half a minute for you to solve the theta versus t graph. Just see how it varies within the time interval of 4 o'clock to 5 o'clock. Remember. Well, Aryan has asked कि इसको रेडियंस में लें या डिग्री में लें. That's your choice. Doesn't matter. चलता है, चलेगा. चलो एक काम करो, डिग्री में ही ले लो, है ना. I think that would be better. तो डिग्री में ले लो और इसको 180 डिग्री लिख लेता हूँ. So take the angle in degrees. So you are finding out the or we are drawing the variation of angle between the two hands with t in a time interval of 60 minutes. Okay, Utkarsh has given कि 120 से लेके 0 तक straight line and 0 to 210 तक एक और straight line. I think that makes sense what Utkarsh has said. I hope others will also agree. कि starting angle क्या हो रहा? 4 to 5 के बीच में अगर मैं देखता हूँ तो 4 o'clock में hour hand 120 पे है, minute hand 0 पे. Then it starts at 120 degree. So let's take this as suppose 120. Okay.
तो अगर ये 180 है तो मे बी वी कैन टेक 120 एज जीरो, और फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं जीरो आएंगे, कब आएंगे ना, 240 by 11. 420 और 425 के बीच में होगा, तो वी ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू फाइंड इट आउट, आई थिंक दैट कैन बी इजीली डन, तो वो कहीं ना कहीं होगा, तो लाइक 120 से लेके ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, द मिनट हैंड विल गो ओवर द आवर हैंड एंड द एंगल विल अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग टू व्हाट वैल्यू, मैक्सिमम इट विल बिकम व्हाट 180, तो देयरफॉर देखना 180 होगा। अब 180 कहां पे होगा, है ना, तो 180 होगा जब मान लो आवर हैंड इज लाइक क्लोज टू 5 and minute hand is opposite to that, by 11 minute. so that can be easily found out, I mean, तो ये 180 होगा, ठीक है। और 60 मिनट पे कहां पे जाएगा वो भी देखने वाली बात है। देखो at 5 o'clock what is the angle, है ना, at 5 o'clock if you look at the angle will be 150 degree, क्यों, क्योंकि at 5 o'clock situation will be what, this and this, so this at 5 o'clock, तो ये एंगल कितना होगा 150 डिग्री, तो देखो 180 डिग्री से फिर रिवर्सल मारे और फिर हम आंसर देंगे as 150, so the angle will be 150, so this is basically 150, like approximate diagram है, समझ जाओ। Now yesterday we discussed and thereby we commented and reached a conclusion कि अगर मान लो तुमको एंगल बिटवीन द टू हैंड्स चाहिए, तो जरा ध्यान से देखो, 0 से लेके 120 अगर चाहिए तो इन दैट केस दो बार हो, देखो कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दो, देखो दो बार, 150 से 180 चाहिए वो भी दो बार, ये देखो, देख रहे हो, लेकिन ये जो 120 टू 150 है, ठीक है ना, देख रहे हो, ये एंगल सिर्फ एक ही बार आएंगे इस रीजन में, अब वो कहां पे आएंगे and all those things can be mathematically found out, we already have derived some equations and based on them we can definitely find them out, point वो नहीं है, point is that कि अगर हम चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं कि कौन से एंगल्स डबल अप हो रहा है और कौन से एंगल्स एक ही बार आएंगे इन अ गिवन 1 आवर। जैसे इस केस में देखा होगा 4 to 5 में क्या हो रहा है, 120 से लेके 150 डिग्री वाला जो एंगल है ये देखो एक ही बार आ रहा है, तो आई थिंक नाउ यू कैन गेस कि अगर मान लो मैं 2 o'clock से 3 o'clock करता हूं तो which range of angles will happen only once, 2 o'clock से लेके 3 o'clock के बीच में which range of angles will happen only once, एक ही बार होगा, कौन से एंगल्स, 2 to 3 o'clock के बीच में, ओके, अरहान has given an answer, ओके, आर्यन, ठीक है, और कोई, लावण्या, आधार, चलो, आई थिंक नाउ इट्स डन, आई मीन यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि इसमें भी क्या होगा, 60 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का जो रेंज है that will happen only once and all the other angles, okay, and all the other angles will happen twice, got it, chalo, so that was about your angles happening once or twice in a 1 hour interval, एक sample example हो गया, ऐसे किसी का भी बनाया जा सकता है and you can understand which angles will happen once and which one will happen twice, ठीक है, chalo, so that was about a small discussion on yesterday's thing, I mean, so it was almost like a follow up, not new but it was a follow up, हाँ बेटा 60 by 90 कैसा है डायरेक्टली, या फिर इसका भी देखा थोड़ा एक्चुअली ना उसको तुमको पता है कैसे विजुलाइज करना है कि एक इंटरवल पे आवर हैंड और मिनट हैंड, सॉरी, आवर हैंड जिस एंगल को स्वीप करता है ना वो एंगल एक ही बार हो, तो 2 o'clock में आवर हैंड कहां पे है 60 डिग्री और 3 o'clock पे आवर हैंड कहां पे है 90 डिग्री, वो जो 60 to 90 डिग्री वाला एंगल स्वीप करता है ना आवर हैंड, दैट इज द एंगल रेंज इन व्हिच द एंगल विल हैपन ओनली वंस, बाकी इधर का और उधर का एंगल्स जो है डबलिंग अप, इज दैट ओके, यस। चलो ठीक है, एक काम करो उत्कर्ष, तुम इसका आंसर दो कि 8 o'clock to 9 o'clock के बीच में कौन से एंगल्स ओनली वंस होंगे, 240 से 270, मैं नहीं सॉरी 120 से 90, 120 से 90, दैट्स राइट,
बिल्कुल सही। यानी 8 और 9 क्लॉक के बीच में अगर मैं देखता हूं तो 120 डिग्री से लेके 90 डिग्री से लेके 120 डिग्री will happen only once. ये once हो। Actually 8 और 9 जब होता है ना तो एंगल फिर हमें रिवर्सल करना पड़ता है क्योंकि 8 will be somewhat like this तो ये एंगल हो गया, 9 will be somewhat like this तो ये एंगल हो गया। तो ये जो आवर हैंड स्वीप कर रहा है, अब हम एंगल ये वाला नहीं लेंगे because by convention whenever there are two lines we take the smaller angle as the angle. So like that's a convention. तो उस convention के हिसाब से चलोगे तो 90 से 120 वाला एंगल इस केस में only once। बिल्कुल सही बात। चलो ठीक है। I hope you got the point now. Let's move on now. There was another question given. I think if I remember the data correctly, just correct me if I'm wrong. Is that 4 और 5 बजे के बीच में आवर हैंड और मिनट है? नहीं, 3 और 4। अच्छा 3 और 4 के बीच में। चलो और 7 और 8 के बीच में आवर हैंड और मिनट हैंड, ये जो दो सिचुएशंस है इसमें इंटरचेंजिंग पार्ट। तो आई डोंट नो द आवर हैंड एंड मिनट हैंड, तो देयरफॉर मैंने इसको मान लिया 3 एंड x और इसको मान लिया 7 एंड y। ठीक है ना? तो 3 और x में आवर हैंड और 7 और y में आवर हैंड और मिनट, ये कौन से लोकेशन पे होगा? लाइक आई एम गिविंग द आंसर टू द क्वेश्चन। अभी 2-3 जने ने आंसर भेजे एंड दे वर करेक्ट आल्सो, बट दे वर ओनली 2-3 आंसर्स। दैट्स आल्सो रॉन्ग। आई मीन ठीक है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया था, आई थिंक मेनी मोर शुड हैव अटेम्प्टेड। तो ये इससे ना एंथुसियाज्म पता चलता, थोड़ा सा जोश लेके आओ। ठीक है, देयर शुड बी मोर पार्टिसिपेशन एंड यू नो आंसर्स कमिंग अप। चलो एनीवे, तो लाइक आवर हैंड 3 और x कहां पे होता है? 90 प्लस x by 90 प्लस x/2। you remember ना कि आवर हैंड कितना जाता है? एक मिनट पे आधा डिग्री, तो x मिनट पे x/2। और यू नो मिनट हैंड कहां पे होगा? 6x, है ना, क्योंकि वो एक मिनट पे 6 डिग्री। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा ना, इसका क्या होगा ना 210 प्लस y/2। 200 210 प्लस y/2। ओके, अगर एंगल के टर्म्स में देखता हूं तो बिल्कुल सही, 210 प्लस y/2 ये एंगल के टर्म्स, और ये हो जाएगा 6y। So basically I have to solve two equations. One is this is equal to this and the other is this is equal to this. दो वेरिएबल मतलब दो अननोन, दो इक्वेशन। एक इक्वेशन 90 प्लस x/2 इज इक्वल टू 6y और दूसरा इक्वेशन 6x इज इक्वल टू 210 प्लस y/2। two equations and solve it and get the answer. So like two equations, two unknowns। अब ऐसे कोई भी इंटरवल के बीच में अगर इंटरचेंजिंग हो रहा है हैंड्स तो उसी तरीके से बनाना पड़ेगा। बस वो है कि 3 और 4 है इसलिए 90 आया है और 7 और 8 है इसलिए 210 है। सो दैट्स द peculiarity of this particular question. but अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो the data will be slightly different. I think we can still handle it. ठीक है ना? चलो let's move on. That was about your revision or what we did yesterday. अच्छा, एक और पेंडिंग क्वेश्चन आधा रह गया था, and that is again I don't remember the data exactly, but then let us start off with that is that कि एक ही पॉइंट से हमने स्टार्ट कराया था, एक ही पॉइंट से हमने 3 ऑब्जेक्ट्स को स्टार्ट कराए थे और तीनों के एंगुलर वेलोसिटीज दिए थे कुछ व्हाटएवर। ठीक है ना? तो जहां तक मुझे याद आ रहा है एक का π/12 था और एक का शायद π/8 था और एक का शायद π/7। am I right? ये डेटा देखो जरा। यस सर। Okay, so in that case question was when do they okay first meet together? सर रुक जाओ, ये वाला हो ठीक है गया। ना? अच्छा, एक और क्वेश्चन भी हमने करा था और वो था कि when do they first meet at the origin? Origin means starting point. ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन था। तो like this was question number 1 और question number 2, when do they first meet at origin यानी starting point। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया था। ठीक है ना? तो फिर भी मैं एक बार जस्ट फटाफट आंसर बता देता हूँ। ये पहली बार ओरिजिन पे कब आएंगे? 2π/π/12 यानी 24 सेकेंड्स। ये कब आएंगे ना 2π/π/8, है ना, यानी 16 सेकेंड्स। और ये कब आएंगे ना 2π/π/7 यानी 14 सेकेंड। तो बेसिकली सेकेंड का क्या होगा आंसर? LCM ऑफ 24, 16
and 14. Okay, so that's how we can get the answer to the second question. We have already discussed this. So what we are now starting is the first question. सर रुकना एक बार, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ बेटे, 1 मिनट रुक जाओ. हाँ वो तो ठीक है. Yes, answers from others. I'm waiting a minute. देख लो. सर एलसीएम क्या होता था फ्रैक्शन का? LCM of fractions. देखो, HCF of fraction. पहली बात तो HCF और LCM निकालने के लिए कंडीशन भी है that all the let me just write down the steps. Fractions के लिए number 1 is reduce all fractions to lowest terms. मतलब कुछ कैंसिलेशन, कुछ बचना नहीं चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ना आंसर गलत भी आ जाता है. मतलब पहले तो सारे फ्रैक्शंस को अपने लोएस्ट टर्म्स में निकालेंगे, सारा कैंसिल करके तब जाके जो रूल मैं बता रहा हूँ. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो द रूल्स ऑफ इट, एंड दैट इज HCF इज इक्वल टू, एंड थर्ड इज LCM इज इक्वल टू, क्या होगा ना, LCM ऑफ न्यूमरेटर बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर. और HCF क्या हो जाता है ना, HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ये हो जाता है. लेकिन उसके लिए मैंने कंडीशन पहले बता दिया है, ऑल द फ्रैक्शंस मस्ट बी रिड्यूस्ड टू द लोएस्ट टर्म. उसके बाद ये रूल लगाए. I have not got any answer till now, and that is, when do they first meet together? सर दोनों सर. ठीक है ना, when do they first meet together? ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखना. इसको छोड़ दोगे तो आंसर गलत भी आ सकता है. Okay, I'm still to get a correct answer from anybody, in fact. We have already got one answer, and there is from Utkarsh, and that is 336. वो अलग बात है कि अगर याद होगा मैंने कल भी एक कमेंट किया था, इज दैट कई बार दोनों का आंसर सेम आ जाता है, कई बार, बट दैट डज नॉट गारंटी दैट इट विल बी द सेम in all the cases. So I think now let's start. The method of solving the first question is like this. The method is that take any particle or any of them as some kind of a reference. यानी मैं काम करता हूँ सबसे फास्टेस्ट को रेफरेंस नहीं, तो सबसे फास्टेस्ट तो यही है π/7. ठीक है ना. अब मैं देख लेता हूँ कि π/7 वाला बंदा जिसका एंगुलर वेलोसिटी π/7 है, वो यानी C वाला A के साथ कब मिलता है, क्योंकि उसी इंटरवल पे बार बार मिलते रहेंगे, और C वाला B के साथ कब मिलता है. ओके, तो वो T1 और T2 आ जाएगा. तो दैट द इंटरवल इन विच दे मीट रेगुलरली. और उसके बाद क्या करेंगे, उसका LCM लेंगे. प्लीज अंडरस्टैंड. यानी C और A का मीटिंग कब होगा, CA का मीटिंग होगा 2π अपॉन π/7 minus π/12. That is the case. ठीक है, देख लो अच्छे से. ठीक है ना, क्योंकि एवरी सेकेंड एक्स्ट्रा एंगल कितना कवर हो रहा है, π/7 minus π/12, क्योंकि दिस इज द एंगल कवर्ड इन 1 सेकंड, दिस एंगल कवर्ड इन 1 सेकंड. एक्स्ट्रा एंगल कितना कवर हो रहा है, π/7 minus π/12.
और वो एक्स्ट्रा एंगल मिल के मतलब ऐड करके टोटल 2 पाई होना चाहिए, तब जाके एक्स्ट्रा सर्कल कवर होगा, यानी एक बार मीटिंग हो जाएगा। That's what the case is. तो ये आंसर है। अभी कितना आ जाएगा? 84, ठीक है ना? 168/5. 5, 84, 168/5. 68/5 सेकेंड्स। ये हो गया सी और ए का मीटिंग। उसके बाद आ जाओ सी और बी का मीटिंग। सी और बी का मीटिंग हो गया 48 seconds. अपॉन 5/7 माइनस 5/8, ठीक है? ये हो जाएगा जो है 56 यानी इक्वल टू 112। अच्छा, हाँ आपने अलग लिया है उससे, ठीक 112 सेकेंड्स, ठीक है? देख लो अच्छे से। तो अब क्या होगा? अब आंसर होगा, तो द आंसर विल बी LCM of 168/5 and 112. अब देखो, ठीक है? जस्ट हैव भाई, तो ये कितना आएगा? इसको मैं लिख सकता हूँ 112/1। तो इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 336, और इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1। तो therefore the answer will be 336 seconds. That is the case. अब इस बार देखा होगा बाय चांस, नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग द वर्ड्स बाय चांस, ये और ये आंसर देखो सेम आया हो, ठीक है ना? बट दिस इज नॉट समथिंग यूनिवर्सल। ये तो ऐसा है ना, वो वैल्यूज कैसे दिया उसके ऊपर, अगर मैं वैल्यूज को ट्वीक करूंगा थोड़ा करके, तो इनके आंसर अलग ही आ सकते, ठीक है? अच्छा, एक बार ये चीज इवेंट हो गया, जैसे मान लो एक बार इसका इवेंट हो गया 336 पे, यानी हर 336 सेकंड्स बाद ये तीनों इकट्ठे मिलते रहे। दैट इज द केस, ठीक है? चलो, आई मीन फ्रॉम दिस नाउ वी कैन हैव मोर क्वेश्चंस आल्सो, कि कब कब जो है ए और बी मिलेंगे, लेट्स से, या किसी का भी ले लो, सी और ए मिलेंगे लेकिन तीनों इकट्ठे नहीं मिलेंगे, तो दैट कुड बी अनदर क्वेश्चन, ठीक है ना? तो उसमें कैसे करेंगे? सी और ए तो एवरी 168/5 सेकंड्स बाद मिल रहे हैं, ठीक है? तो द मीटिंग्स विल गो ऑन। एक मीटिंग 168/5, दूसरा 168/5 into 2 into 3 into 4 into 5, है ना, into 6 into 7, इस तरह से मिलते रहेंगे। लेकिन वो जो 336 वाला सेकंड वाला जो मीटिंग है, उसमें तीसरा भी आ गया। तो अगर सिर्फ ए और सी को मीटिंग चाहते हो, तो दैट केस 336 तक जितने मीटिंग्स हो रहा है उसमें से एक ये वाला को माइनस कर देंगे। तो एवरी 336 सेकंड्स एक माइनस कर लो, या जो भी माइनस करना है माइनस कर लो, एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना? सॉरी, 336 नहीं, 112 के मल्टीपल वाले जो मीटिंग्स है वो हम लोग माइनस एंड सो ऑन। सो दैट्स हाउ द थिंग विल बी विजुअलाइज्ड, ठीक है ना? तो लाइक देयर कुड बी मोर क्वेश्चंस देन व्हाट आई हैव गिवन, but I have given one question just for practice, ठीक है ना? Okay, now let's move on. I hope you got the idea as to what has to be done. तो यानी बेसिकली अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, तो लेट्स जनरलाइज। So let's say if there are a lot of particles starting here with omega 1, omega 2, omega 3, etc. So then there are two questions. Number one is meeting at origin. तो क्या हो जाएगा? LCM of 2 pi by omega 1, 2 pi by omega 2, 2 pi by omega 3, इस तरीके से। ये हो गया मीटिंग एट द ओरिजिन, ठीक है? और सेकेंड है मीटिंग ऑल टुगेदर। अच्छा, मीटिंग ऑल टुगेदर के लिए क्या है ना, किसी एक को रेफरेंस लेना होता। अब किसको रेफरेंस लेना चाहिए होगा वो तुम्हारा चॉइस, डजंट मैटर। तो मैं एक जनरल ले रहा हूं, मैंने ओमेगा 1 को रेफरेंस लिया, ठीक है ना? तो देयरफॉर व्हाट विल हैपन, इट विल बी द एलसीएम ऑफ 2 पाई बाय ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 मॉड। अच्छा, मॉड इसलिए क्योंकि मुझे मालूम तो है नहीं कि ओमेगा 1 ज्यादा है या ओमेगा 2 ज्यादा है,
So therefore I will have to take mod all the time. इसमें तो जरूरत नहीं पड़ा because like we know that, है ना? और 2 pi by omega 1 minus omega 3 mod, 2 pi by omega 1 minus omega 4 mod, etc. ऐसे करते करते इन सब का LCM. कई बार ये कोइंसिडेंट होते हैं, कई बार ये कोइंसिडेंट नहीं भी होते. So just as a final this thing, I mean they do not have same answer always. कभी कभी सेम भी आता है, जैसे जो मैंने क्वेश्चन जो अभी दिया था उसमें सेम आया, वो एक्चुअली ना वैल्यूज के ऊपर होता है कि वैल्यूज कैसे दिया गया. ठीक है. चलो, that was a small discussion on some of the things that we are having in the agenda. Now सर let's प्लीज start. डोंट रब. हाँ बेटे. सर 1 मिनट रुक जाओ सर, नोट करना है. अच्छा अच्छा, चलिए कल. चलो, I think now it's okay. I mean, so till now we were discussing about angular quantities in circular motion. एक काम करो, एक ना प्रैक्टिकल एग्जांपल से आज स्टार्ट कर. ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं और ड्रॉ अ रफ ग्राफ ऑफ ओमेगा ऑफ अ फैन. ठीक है, सो ड्रॉ अ रफ ग्राफ ऑफ ओमेगा ऑफ अ फैन वर्सेस टी. और अगर ओमेगा बना रहे हो तो फिर थीटा भी बनाई दो, है ना? ओमेगा वर्सेस टी एंड अल्फा वर्सेस टी. Just start उसको मतलब वैसे ही. Now let me give you the example that I'm wanting you to do. I mean, इससे ना एक प्रैक्टिकल कनेक्शन बनता है कि एग्जैक्टली होता कैसा. तो एक बार सर्कुलर मोशन को विजुलाइज करना इज लिटिल टफ जॉब. तो मैं चाहता हूं कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसको रिलेट करो. अब मैं एग्जांपल पहले बता देता हूं क्या है. एक फैन को मैंने स्विच ऑन किया, उसको पूरा फुल स्पीड तक जाने दिया, थोड़ी देर फुल स्पीड तक उसको चलने दो और लेट इट गो ऑन विद द फुल स्पीड. आई मीन, एंड देन आफ्टर सम टाइम आई स्विच ऑफ द फैन. यानी फैन को ऑन किया, then let it run for some time, okay, and after that I off and I switch off the fan. तो इस पूरे प्रोसेस का अप्रोक्सीमेट, देखो हमें वैल्यूज तो नहीं पता होता है बट एक सेंस बनता है कि पूरे प्रोसेस का अल्फा ओमेगा और थीटा वर्सेस टी का एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ. अप्रोक्सीमेट ग्राफ ऑब्वियसली बिकॉज यू कैन नॉट ड्रॉ एग्जैक्ट ग्राफ, बट एक मोटा मोटा एक फील से बनाओगे ऑब्वियसली, फील से एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ. चलो गो अहेड. अल्फा तो कांस्टेंट माने ना कुछ पीरियड के लिए, वरना बनेगा. एक्चुअली ट्राई टू टेक ए रियलिस्टिक वे. ठीक है, इसलिए मैं अब उससे ज्यादा कमेंट नहीं करना चाह रहा हूं. तो ट्राई टू बी लिटिल रियलिस्टिक ऑफ व्हाट यू सी इन अ फैन मोर और लेस. चलो गो अहेड. मतलब रियलिस्टिक ठीक है, वो स्टार्ट इनिशियल पीरियड में कांस्टेंट हो और उसके बाद जीरो हो जाए. चलो इतना डिस्कस नहीं करें तो अभी देखते हैं व्हाटएवर आइडियाज यू आर हैविंग, स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग एंड देन वी विल सी. ठीक है, आई थिंक दैट वुड बी बेटर, है ना? Arhan has asked, can I answer on WhatsApp? Surely, why not? WhatsApp पे आंसर करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम. सर व्हाट्सएप करना आएंगे सर, ऐसे ही बता दीजिए. कर दो. अभी देखूंगा.
I'm still to get an answer, I mean. ये approximate ही बनाना, obviously we don't have value, so like we cannot do exact, but then एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है फिर कि कैसे करना. बना लिया सर. Now let me start answering, I mean. ठीक है ना, देखो. Let's target alpha first. Actually होता पता क्या है कि फैन का जो अपना ताकत है, पावर है मोटर का, वो पहले अकेला काम करता है. क्यों? क्योंकि उसी से फैन का स्टार्टिंग होता है. तो इनिशियली अल्फा का वैल्यू थोड़ा हाई रहता है. तो इनिशियली अल्फा हाई हो गया. उसके बाद पता क्या होता है, जैसे जैसे फैन का स्पीड बढ़ता रहता है तो उस पे ऊपर एयर रेजिस्टेंस उल्टे डायरेक्शन में काम करना शुरू करता है. इट्स समवॉट लाइक, नाउ लेट मी अगेन रिलेट विद अनदर प्रैक्टिकल एग्जांपल. समवॉट लाइक व्हाट हैपेंस व्हेन यू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सम हाइट. तो क्या होता है, इनिशियली एकदम स्टार्टिंग में देखो तो क्या होता है, एक ही फोर्स है, वो ग्रेविटी. तो देखो देयर इज अ इमीडिएट एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g. लेकिन जैसे ही बॉडी उस g एक्सेलरेशन से थोड़ा नीचे आना शुरू करता है, उसका वेलोसिटी बढ़ता है. इन दैट केस क्या होता है, उसका ऑपोजिंग फोर्स भी बढ़ता रहता है. देयरफॉर जो नेट फोर्स है वो घटता रहता है. तो अगर नेट फोर्स घटता रहेगा तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा ना, एक्सेलरेशन भी रिड्यूसिंग होगा. यानी स्टार्टिंग में g लेकिन एक्सेलरेशन रिड्यूसिंग होगा. Exactly the same will happen with the fan also. As the speed of the fan increases, you will see that there is more and more and more air resistance. जिस चक्कर में क्या होगा, there will be opposition also to the fan. यानी initially fan, now listen to the language very carefully. Initially fan जिस रेट से एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा था फैन का, धीरे धीरे देखना एंगुलर वेलोसिटी तो बढ़ेगा लेकिन उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी घटेगा. नाउ दिस लिटिल ironical statement. Angular velocity will increase but the rate of change of angular velocity will decrease. So therefore what will happen is that alpha will reduce. अब ये alpha जो reduce करेगा, ये linearly करेगा, non linearly करेगा, that's a little complex thing. So let's not go into that much of details. ठीक है ना, मैं देखता हूँ in the meanwhile अगर किसने आंसर किया है तो let's not go into so much of details, but at least we can say that yes it will be reduced. When it reduce, मैंने approximately linear मान, हो सकता है कि एग्जैक्टली लीनियर ना होता हो, डजंट मैटर, कोई बात. अब इसको थोड़ा सा कर्व भी बना सकते हो, थोड़ा लीनियर भी बना सकते हो. आई हैव मेड इट अप्रॉक्सिमेटली लीनियर. और एक चीज और ऑब्जर्व किया होगा, थोड़ी देर बाद फैन का स्पीड बढ़ना बंद हो जाता है. फैन नहीं बंद हुआ, फैन का स्पीड बढ़ना बंद हो गया, यानी अल्फा हो गया 0. सो दैट्स व्हाट अल्फा इज. ठीक है, अब दोबारा सुनो. पहला जब ओमेगा जब वो कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहा है. हाँ हाँ, वो ड्यूरेशन ये वाला. देखो एक बार फैन का स्पीड बढ़ जाता है तो एक सर्टेन स्पीड पे फिर वो कांस्टेंट हो जाता है ना, यानी अब अल्फा खत्म हो गया. क्योंकि अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा डी टी, तो ओमेगा तो कांस्टेंट, यानी इस फेज में अल्फा 0 हो गया. उसके बाद जब मैंने ऑफ किया तो लाइक दिस इज व्हेन इट इज ऑन. अब मैंने यहाँ पे इसको ऑफ किया. ऑफ करते क्या हो गया, सडनली जो फैन के अपने अंदर का ताकत था मोटर का वो खत्म हो गया. तो सडनली देयर इज अ ह्यूज ऑपोजिशन है. नाउ यू माइट से सडनली क्या ऑपोजिशन बढ़ जाता है? ना ना ना, ऑपोजिशन उतना ही जितना कि फैन के अपना ताकत था. क्योंकि फैन का ताकत और ऑपोजिशन का ताकत दोनों बराबर हो गया था, तभी तो अल्फा 0 हुआ था इस दौरान. लेकिन जैसे ही फैन का अपना ताकत खत्म हो गया क्योंकि ऑफ कर दिया, तो क्या हो गया, ऑपोजिशन का ताकत अकेला रह गया. इसलिए जितना अल्फा तुमको यहाँ पे मिला था उतना ही अल्फा यहाँ पे रहेगा, लेकिन अब नेगेटिव हो जाएगा. लाइक दिस विल बी इक्वल. और यू माइट सी कि आपने इक्वल क्यों कर दिया? क्योंकि इस फेज में फैन का ताकत और ऑपोजिशन का ताकत बराबर था. और अब अगर सडनली फैन का ताकत हटा दो स्विच ऑफ करने के चक्कर में, यानी ऑपोजिशन का ताकत रह गया. तो ऑपोजिशन का ताकत उतना ही होगा जितना फैन का. तो फैन के तो ताकत इनिशियल ऐसे था, यानी इसलिए ऐसे हो जाएगा, यानी द सेम वैल्यू ऑफ अल्फा विल हैव. तो अगर इनिशियल कुछ अल्फा नॉट था तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा. ये भी इंपॉर्टेंट. और उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे फिर जैसे जैसे फैन का स्पीड कम होता जाएगा तो उसके अल्फा का वैल्यू भी मैग्नीट्यूड वाइज रिड्यूस होगा, एंड देन फाइनली तो इट बिकम्स 0. लाइक इट विल बी समवॉट लाइक दिस.
अब वो लीनियर होगा नहीं होगा, लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिबेट, तो लेट्स ओनली ड्रॉ दिस, ठीक है। तो दैट वुड बी अ रफ ग्राफ ऑफ अल्फा। मैं इसको इस फेजेस में डिवाइड कर सकता हूँ, आई थिंक फेजेस में डिवाइड कर तो ज्यादा अच्छा, लाइक कैन एटलीस्ट ड्रॉ अ लिटिल ऑफ ग्राफ काइंड ऑफ। अब आ जाओ ओमेगा। अब ओमेगा का क्या होगा? देखो ओमेगा कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, लेकिन ओमेगा का बढ़ने का रेट घटता जा रहा है। सो दिस अ वेरी साइंटिफिकली ड्रिवन स्टेटमेंट्स, हर एक का सिग्निफिकेंस है, वेटेज है। आई विल रिपीट माय स्टेटमेंट, ओमेगा बढ़ता जाएगा लेकिन ओमेगा का बढ़ने का रेट घटता जाएगा। तो देयरफॉर ओमेगा बढ़ेगा 0 से एंड इट विल बी समवॉट लाइक दिस, और उसके बाद ओमेगा फिक्स, कॉनकेव डाउन, उसके बाद फिर स्ट्रेट। और उसके बाद सडनली उसका घटना शुरू होगा। तो उसके बाद मैं 3 ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, मुझे बता देना ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट। मैं यहां तक तो चलो देखो, अब मैंने ऑफ कर दिया। अब मैं 3 ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि फाइनली तो ओमेगा 0 होगा। तो मैं 3 ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, एक ए, एक बी और एक सी। तो ये ए है मान लो, ऊपर वाला, बीच वाला बी है, सी, सबसे इधर वाला सी है। तो C. please write a message as to which one is the correct answer, A, B, C. Okay, now in the meanwhile there are some questions also, and that is Lavanya has asked the opposition force will Arhan has asked, sorry, and that is the opposition force will decrease by time or will remain the same. Actually पहली बात तो opposition force is not the right word, it is actually opposing torque, but anyway let's remove that part. I mean the thing is that initially opposing torque, चलो मैंने टॉर्क वर्ड यूज कर ही लिया, तो लाइक इनिशियली द ऑपोजिशन विल बी मोर। क्यों? क्योंकि इनिशियली स्पीड ज्यादा है, और जितना ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा ऑपोजिशन, और जैसे जैसे स्पीड घटता जाएगा ऑपोजिशन भी घटता जाएगा। ओके, वी हैव गॉट आंसर्स फ्रॉम एवरीबॉडी, द सेम आंसर इज कम एंड थैंकफुली, एंड दैट इज सीएम। लावण्य, उत्कर्ष, यश, पर्ल, आधार, सबने सी बताया। बिल्कुल सही बात है, इनिशियली सबसे जल्दी रिडक्शन होगा, ये देखो, और फिर धीरे धीरे रिडक्शन का रेट घटता जाएगा। सो देयरफॉर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ थीटा। थीटा, तो थीटा क्या होगा? वो तो बढ़ता ही जाएगा, है ना? तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, तो लाइक दिस सम काइंड ऑफ, और फिर स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना? स्ट्रेट लाइन काइंड ऑफ, और फिर ऐसे काइंड ऑफ, और उसके बाद तो खत्म। तो ये वाला पार्ट स्ट्रेट लाइन। This has given us some kind of a perspective or an outlook of what exactly is going to happen in terms of alpha, omega, and theta, at least for a fact. Okay, I hope it was some kind of a mental exercise to like correlate with various aspects of circular motion. Okay, na? Chalo, okay, I think we'll leave it at there. I hope you have all got the points that we were wanting to discuss. इसमें important चीज था कि वो C वाला graph, it won't be A, it won't be B, but it would be the C wala graph. है ना? चल, I think that was a good exercise, mental exercise rather, and from here now we can possibly move on. ठीक है? Now we begin the second phase of the discussion. एक third phase आएगा जो कि हम लोग 7th chapter में करेंगे, जो कि आज नहीं करेंगे या अभी नहीं करेंगे। अब हम second phase पे start करें। Second phase क्या है? Second phase है linear quantities in circular motion. ठीक है? Linear quantities in circular motion. In the meanwhile, there is a question also. Let me read that out quickly, and that is, Aryan has asked, why are we accounting for air resistance initially when we normally don't? ध्यान से सुनो, मैंने initially air resistance नहीं लिया था। कहाँ लिया था? तभी तो मैंने बोला ना कि initially it is the strength, वैसे तो मैंने हिंदी में ताकत वर्ड यूज किया था, इनिशियली सिर्फ फैन का ताकत था। जैसे ही फैन घूमना स्टार्ट किया तो उसका जो नेट ताकत रह गया वो थोड़ा सा घटना शुरू किया क्योंकि एयर रेजिस्टेंस का ऑपोजिशन स्टार्ट। सो दैट वाज लाइक आफ्टर इट हैज स्टार्ट।
एकदम इनिशियली अकेले फैन का ताकत, तो वो जो इनिशियली अल्फा नॉट दिया था मैंने, वो प्योरली फैन का था, अपना फैन का मोटर का था अपना, ठीक है ना? That was the answer to question from Aryan. Okay, now we are talking about linear quantities in circular motion. So linear quantities का मतलब क्या होता है? We will talk about velocity, acceleration, and if required, displacement also. चलो, so let's start. This is suppose a circular motion, and let's say the particle is somewhere here. It can be anywhere, by the way, or somewhere here. We are going to define two vectors, two unit vectors. One is along the tangent, and we're going to call it as ET. It's a unit vector. And the other is towards the center. And let's call it as ER or ER. Okay. So tangential and radial. So we are defining two vectors based on the position of the particle. We are defining two vectors. उस point का tangential vector, unit vector, और उस point का radial vector, unit vector. Tangential direction क्या होगा? Will be decided by the direction of its motion, यानी ओमेगा clockwise है या anti clockwise. तो अगर मान लो anti clockwise है तो ET ऐसे होगा, और अगर clockwise है तो ET ऐसे होगा. That's how we are defining. और E radial क्या है? उस particle से लेके center. So therefore, let's see if the particle is moving like this. Suppose in that case यहाँ पे क्या होगा ना? This will be ET and this will be ER. Let's call it as capital R. We are defining two vectors. ठीक है? ये I cap, J cap, K cap नहीं है, ध्यान रखना. ठीक है ना? Please take care. ये I cap, J cap, K cap नहीं. Now what I do is that let us say this particle is moving with some kind of angular velocity omega. Okay. So in a very small interval of time, dt, let us say it has moved from here to here. So that's the movement. So the movement is by a very small angle, and that is d theta. We know that this movement is along what? The tangential direction. So therefore, the velocity will be equal to what? Small displacement upon small time. So ds upon dt. What is ds? Isn't it equal to, तो अगर मान लो इसका radius r है suppose, तो isn't this equal to r d theta? ये हो गया r d theta by dt, और ओमेगा क्या होता है? d theta by dt. So therefore it will be r omega. What direction is it? Tangential. So therefore we are going to write it as velocity tangential is equal to omega r dt. Just for example, यहाँ का ET J cap है, पर यूनिवर्सल नहीं है. यहाँ का तो सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ होगा, यहाँ पे माइनस I cap होगा, वगैरह. So like it will have its own nuance as an where is it required? It is required. ठीक है ना? तो ये हो गया velocity. यानी सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल जब सर्कल में मूव कर रहे हैं, ऑब्वियसली हर इंस्टेंट पे उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है, और वो टेंजेंशियल वेलोसिटी, और वो कितना होगा? as I said, omega r into et. ठीक है? चलो, I'm just looking at the that was about velocity. यानी velocity of a particle in circular motion has a magnitude omega r and direction tangential. तो इसलिए मैंने उसको et वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट. ठीक है? So that was about velocity. Now let's look at acceleration. Now for acceleration, what do I do? Let us say the particle is here. तो अभी इसका जो वेलोसिटी है वो है ओमेगा. ठीक है? थोड़ी देर बाद मान लो आफ्टर कवरिंग ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम
this d theta I mean, and d theta is very small, mind you. The value has slightly changed. So let's say a new value, and that is omega plus d omega into r. ठीक है? तो अगर मैं इसको देखता हूं तो in that case देखो क्या है ना कि if you look at the final velocity, okay, तो अब मैं इनको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा. तो डेल्टा v वेक्टर या dv वेक्टर क्या हो जाएगा ना इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल. सिंपल है. तो इनिशियल तो ये है माइनस ओमेगा आर ईटी, है ना. इनिशियल तो ओमेगा आर ईटी है, लेकिन जो फाइनल है उसमें थोड़ा सा दिक्कत, क्योंकि फाइनल इज नॉट एग्जैक्टली द टेंजेंशियल वन, इट इज स्लाइटली एट एन एंगल. तो मैं इसके कंपोनेंट कर लेता हूं. एक रेडियल, यहाँ का ये हो गया ईटी और यहाँ का ये हो गया आर. ठीक है. तो एक ये जो वेक्टर ये थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया, तो इसका एक टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा और एक रेडियल कंपोनेंट, है ना. तो टेंजेंशियल वाला क्या आएगा, तो टेंजेंशियल वाला आएगा, तो अगर ये डी थीटा होता है तो ऑब्वियसली फिर ये एंगल भी डी थीटा ही होगा. यानी ये आ जाएगा ओमेगा प्लस डी ओमेगा इंटू आर इंटू कॉस डी थीटा ईटी. ठीक है. माइनस देखो ये माइनस है, सॉरी प्लस ओमेगा प्लस डी ओमेगा इंटू आर. अब ये वाला चलो कंपोनेंट तो कॉस डी थीटा, ये वाला तो साइन डी थीटा होगा इंटू साइन डी थीटा. ठीक है ना. ओमेगा प्लस दिस इंटू आर माइनस इनिशियल, तो माइनस इनिशियल कितना हो गया ना ओमेगा आर ईटी. So therefore the change in velocity will be given by this vector. Have a look. ठीक है. This is the change in velocity. अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो क्या आता है ना ओमेगा आर cos d theta. Now cos d theta will be approximately 1, है ना. तो ओमेगा आर ईटी. ठीक है. देख लो प्लस d omega r dt. Now actually cos d theta, this will be approximately equal to 1. Why? Because angle that we are taking are very small. ठीक है. So therefore d theta is, remember, very small. So therefore sin d theta will be taken as d theta and cos d theta will be taken as 1. So therefore sin d theta is approximately d theta and cos d theta is approximately 1. So these are the two things that we have to take. ठीक है. तो ये इसका ब्रेकअप आ गया. फिर इस पे आ जाओ. प्लस ओमेगा आर साइन डी थीटा इज अप्रोक्सीमेटली डी थीटा, ओमेगा आर डी थीटा ई आर प्लस डी ओमेगा आर डी थीटा. तो डी ओमेगा आर डी थीटा ई आर हो गया माइनस ओमेगा आर ई, तो माइनस ओमेगा आर ई. ये हो गया डीवी यानी चेंज इन वेलोसिटी. तो इसमें से अगर देखोगे ध्यान से तो ओमेगा आर ईटी तो कैंसिल. अच्छा ये जो टर्म है ना ये हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि हर एक में देखो एक ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल होता है. यहाँ पे दो है. डी ओमेगा इज वेरी स्मॉल, फिर डी थीटा इज आल्सो वेरी स्मॉल, तो वेरी स्मॉल इनटू वेरी स्मॉल इज नेग्लिजिबल. तो इसको तो हम नेग्लेक्ट करेंगे. तो बचा क्या, इज इक्वल टू डी ओमेगा इंटू आर ई टी. ठीक है. प्लस ओमेगा आर डी थीटा इंटू ई आर. ये हो गया डीवी. माइंड यू ये डीवी है. तो देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या होगा, डीवी बाय डी यानी आर इंटू डी ओमेगा बाय डी टी इंटू ई टी यानी टेंजेंशियल. ठीक है ना. प्लस ओमेगा आर
d theta by dt er। अच्छा, d ओमेगा dt क्या होता है? अल्फा, है ना? अल्फा इज इक्वल टू d ओमेगा dt। और d theta by dt क्या होता है? ओमेगा, we know that। तो therefore ये क्या हो गया? अल्फा r et और d theta by dt ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर r er, यानी ये बन गया अल्फा r et प्लस ओमेगा स्क्वायर r er। दैट इज द एक्सप्रेशन। यानी सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल चल रहा है विद सम अल्फा एंड विद सम ओमेगा, तो इन दैट केस क्या होगा? इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा उसमें दो कंपोनेंट्स होगा, एक टेंजेंशियल है और एक रेडियल। तो टेंजेंशियल वाला कौन सा है? अल्फा। और रेडियली इनवर्ड्स, ध्यान रखना, er इनवर्ड्स लिया गया मैंने, तो रेडियली इनवर्ड्स क्या हो गया ना? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा इस दैट, so therefore ये तो सर एक हो गया। मिनट नोट कर रहे हैं, रब मत करना। मैं ऊपर का सिर्फ 2 लाइन मिटा देता हूँ, ये वाला। सर एक चीज पूछनी है, हाँ बेटे। मतलब जब ये एंटी मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा तब हम एंगल फिर भी एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे? नहीं तो हम माइनस रखेंगे ना। नहीं मतलब क्लॉकवाइज, मतलब देखो एंटी क्लॉकवाइज, एक सेकंड मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा। देखो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, ये कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं। तो फिर सर ना उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब फिर ना ईटी की, किसका डायरेक्शन? ईटी, क्योंकि ना v इक्वल टू ओमेगा आर ईटी में अगर ना v का साइन चेंज हो गया, ओमेगा का साइन चेंज हो गया ना, हमने तो तो ईटी डिफाइन ET किया एज पर द मोशन है। हमने ईटी को डिफाइन किया एज पर द मोशन, जिस तरह मोशन हो रहा है हमने उसी तरफ ईटी डिफाइन किया। ठीक है, एक बार देख लो। मैं जस्ट थोड़ा वेट कर लेता हूँ, मे बी हाफ अ मिनट। हेलो सर, आवाज आ रही? हाँ आ रहा है। हाँ वो वाईफाई चला गया था, लेकिन ना ओमेगा का साइन चेंज हो गया, ईटी का साइन चेंज हो गया, तो वीटी का साइन तो चेंज नहीं होगा ना, तो इक्वेशन तो फिर बैठ ही नहीं फिर। टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होगा ना। अगर ओमेगा का साइन बदलोगे तो इन दैट केस ऑब्वियसली टेंजेंशियल वेलोसिटी का साइन बदलेगा, क्योंकि हम ओमेगा को देख के ईटी डिफाइन कर, ओमेगा के सेंस में ईटी है। सर हाँ बेटे। सर इसका नाम ये कह सकते हैं सर कि जैसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगी वो अल्फा आर होगी और रेडियल के अलोंग ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ यही तो हम कंक्लूड करेंगे, तो यही मैं लिखने वाला हूँ, इज दैट देयरफॉर एक्सेलरेशन हैज टू पार्ट्स। Acceleration has two parts. Number one is due to change in magnitude, ठीक है, which is tangential. ये है, ठीक है, तो ये आ गया। यानी मैं पता क्या लिखने वाला हूँ, is that alpha r is therefore equal to d dt of mod v. देखिए, ठीक है, and the other is because of change in direction. So due to change in magnitude, and the other is due to change in direction. तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये जो नाम है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड बाय टू नेम्स, आइदर इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज रेडियल एक्सेलरेशन, डिपेंड करता है। सर
तो इसका नाम, दो नाम है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी नाम है। क्यों? क्योंकि सेंट्री मतलब होता है सेंटर, वर्ड से आया है, और पीटा इज अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड एज टुवर्ड्स। तो सेंट्रीपिटल मतलब हो गया टुवर्ड्स द सेंटर। तो वो जो ER लिख रहा हूं मैं, वो टुवर्ड्स द सेंटर। यानी कहीं पे भी अगर सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी वेक्टर, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन वेक्टर देखते हो, तो एक टुवर्ड्स सेंटर और एक जो है अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, दैट्स ऑल। ऐसे एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देन वी विल प्रॉब्ली मूव ऑन। So these are basically the linear quantities in circular motion. जैसे एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट, लेट्स से एक सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट है, और ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, लेट्स से रेडियस सपोज 2 मीटर है, और इसका ओमेगा ऐसे है, ठीक है, लेट्स से 5 रेडियन पर सेकेंड, फाइन, and this is reducing, suppose the omega is reducing at 10 radian per second square। तो यानी इसका जो रिडक्शन हो रहा है वो है 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो तुमको इस पॉइंट पे, जो कि एट एन एंगल ऑफ लेट्स से 37 डिग्री है, ये पॉइंट है, तो तुमको बताना है फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। चलो गो अहेड क्विकली। Adhar has asked a question also, that is centripetal is necessary for circular motion. Actually, let me make it slightly more general, Adhar, and that is whenever there is a curve. So I'm not talking about a circle now. I'm talking about any curve. Whenever there is a curve, there will be centripetal acceleration. Okay? Whenever there is a curve, there will be a centripetal acceleration. So it need not be a circle per se. You move in any curve, there will be a centripetal acceleration. क्यों? क्योंकि कर्व का खासियत क्या है कि डायरेक्शन बदल रहा है। स्ट्रेट लाइन में कम से कम डायरेक्शन तो नहीं बदल रहा है, लेकिन कर्व में क्या है, डायरेक्शन बदल रहा है। तो therefore there will be centripetal acceleration all the time. सर ये स्टार्ट कहाँ से कर रहा है वो पार्टिकल? एक्चुअली ना तुमको इस इंस्टेंट पे पूछा गया, तो कहीं पे भी स्टार्ट करो, यहाँ पे स्टार्ट किया होगा इस वक्त, यहाँ पे है, और 5 रेडियन पर सेकंड दे रखा है। आई थिंक दैट इज गुड इनफ इंफॉर्मेशन। स्टार्ट कहाँ पे क्या उतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि इस इंस्टेंट का डेटा दिया गया और इसी इंस्टेंट का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। Aryan has asked another question, that is, so the equations can be defined for any curve perhaps. It's not a question of perhaps, we will later on do exactly what you are suggesting. कि जरूरी नहीं है कि हम इसको सर्कल में ही लगाएंगे, हम इसको और भी कर्व्स में लगाएंगे। Don't worry, that is there for future discussion. Aryan, you are right. सर हाँ, जैसे एक सर्कल बना लो, उसमें फिर जैसे अगर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ईटी आपने डायरेक्शन उल्टी ले ली, ओमेगा भी ना अब नेगेटिव है, तो फिर ना ओमेगा आर ना ईटी ना एंटी क्लॉकवाइज वाले में आ जाएगा। चलो देखो, इस क्वेश्चन का जवाब तो मैं अभी दे देता हूँ, बट यू नो व्हाट, लेट मी गिव यू अ लिटिल बिट मोर जनरल आंसर, एंड दैट इज, इसका एक्चुअल आंसर पता है क्या है? इसका एक्चुअल आंसर है वेक्टर तरीका, यानी वेक्टर मोड में आंसर हो, तो जो कि थर्ड फेज ऑफ डिस्कशन, उसमें ना ये सब क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरीथिंग विल बी इन वेक्टर फॉर्म पहले से। जैसे अभी हम लोग टेंजेंशियल वेक्टर का डायरेक्शन देख के डिसाइड कर, बाद में ये सब डिसाइड हम नहीं करेंगे, टेंजेंशियल वेक्टर खुद ब खुद सॉल्व होके आ जाए बेस्ड ऑन वेक्टर इक्वेशंस, ये चीज। तो अभी फिलहाल तो क्या है ना, हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जर्व पार्टिकल क्लॉकवाइज जा रहा है, पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस हिसाब से टेंजेंशियल वगैरह ये सब डिसाइड कर। बट बाद में ऐसे नहीं होगा, बाद में इनके जब जनरल वेक्टर फॉर्म आएगा, दैट्स व्हाई आई सेड देयर आर थर्ड फेज ऑफ डिस्कशन, वो लेकिन हम लोग 7th चैप्टर में करेंगे। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा अभी एक प्रिलिमिनरी लेवल पे डिस्कशन हो रहा है, जहां पे हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है कि ईटी का डायरेक्शन क्या होगा। जैसे इस केस में ईटी का डायरेक्शन ऑब्वियसली क्या होगा, इधर होगा, ये ईटी का डायरेक्शन, ये इस केस में। पर अगर मान लो मैं तुमको ये एरो छुपा देता हूँ और मैं कहता हूं कि इसका एंगुलर वेलोसिटी है 5 रेडियन पर सेकंड, फिर मैं ईटी का डिसीजन नहीं ले पाऊंगा, ईटी का डिसीजन मैं नहीं ले पाऊंगा। ये एरो मुझे दिखेगा
तब जाके मैं ईटी का डिसीजन ले पाऊंगा कि मुझे इधर लेना चाहिए या मुझे इधर लेना चाहिए। क्योंकि देखो रेडियल में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, इट हैज टू बी टुवर्ड्स सेंटर। प्रॉब्लम टेंजेंशियल को लेके है, क्योंकि टेंजेंशियल दो डायरेक्शन पॉसिबिलिटी होता है। तो देयरफॉर वी हैव टू वेक्टर फॉर्म में भी टेक वन ऑफ देम। सर वेक्टर फॉर्म में भी ER का डिफरेंशिएशन ET आ जाता है, तो अगर ET का क्लॉकवाइज में उल्टा लोगे तो फिर वो इक्वेशन सही नहीं होगी कि डिफरेंशिएशन हो। फॉर्म का एनालिसिस टोटली अलग है, वी विल डिस्कस व्हेन वी आर गोइंग टू टेक द वेक्टर फॉर्म एज सच, ठीक है ना, उसका डिस्कशन तभी करेंगे। लेट्स नॉट डू अ प्रिलिमिनरी प्रीमैच्योर डिस्कशन। इन द मीनवाइल कुछ आंसर्स आ रहे हैं, एंड दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ET। एक्चुअली क्या ना, मैं चाह रहा था कि एक्सेलरेशन को I कैप J कैप के फॉर्मेट में दे, ठीक है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो वेलोसिटी क्या होगा, 5 × 2 10, और एंगल अगर देखोगे तो ये 37, तो ये 53, तो लाइक ये 37, ये 53 आ। तो देयरफॉर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड ओमेगा r 10 मीटर पर सेकंड और cos 53 sin 50, है ना। यानी वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा 6i कैप प्लस 8j। ये तो हो गया वेलोसिटी एट पॉइंट P। तो अब आ जाओ एक्सेलरेशन एट पॉइंट। अब एक्सेलरेशन एट पॉइंट P अल्फा r पे डिपेंडेंट है। अब अल्फा का डिसीजन कैसे लोगे, अब देखो इसमें लिखा हुआ है क्लियरली, इट इज रिड्यूसिंग एट द रेट ऑफ 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यानी अल्फा का मैग्नीट्यूड 10 है, और क्योंकि रिड्यूसिंग है इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा का उल्टा है। तो देयरफॉर इस बार हम ये डायरेक्शन, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि रिड्यूसिंग है तो देयरफॉर उल्टे डायरेक्शन, ठीक है। अब कितना होगा, अल्फा इंटू आर, तो ये हो गया 20, और एंगल क्या होगा ना, ये 53 है, ये भी 53 होगा, है ना। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज AT प्लस AR। अब AT का हम अलग से निकालेंगे और AR का अलग से निकालेंगे। तो पहले AT का देख लेते हैं। तो AT का इधर 20 है, तो 20 cos 53 और 20 sin 53, तो थर्ड क्वाड्रेंट का वेक्टर, तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो देयरफॉर -12i कैप -16j कैप, 20 × 3/5, 20 × 4/5, यहाँ तक ठीक है। चल तो अब आ जाओ रेडियल। रेडियल क्या है, ओमेगा स्क्वायर r, तो ओमेगा स्क्वायर r यानी 25 2, सो 50। अब 50 किधर है, इधर है ना। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट यानी I नेगेटिव J पॉजिटिव, तो अगर ये 37 तो ये भी 37, तो 50 का cos 37 यानी -40 और +30, यानी -40i कैप प्लस 30j कैप। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन वेक्टर एट पॉइंट P कितना आ गया, -12i कैप -40i कैप यानी -52i कैप, -16j कैप प्लस 30j कैप यानी +14j कैप। सो इस इंस्टेंट पे ये हो गया एक्सेलरेशन वेक्टर और ये। सो वी हैव नाउ फाउंड आउट द वैल्यूज ऑफ VT, AT, सर AR and then found out the total acceleration in terms Sir? of I cap and J cap. ठीक है, yeah, Sivraj, you are saying something? सर जैसे इसमें सर 5 रेडियंस पर सेकंड थी किसी इंस्टेंट पर, और हमसे पूछा था कि P पर क्या होगी, और रिड्यूसिंग हमें पता है कि 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। सर हमें इसमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि मान लो अगर हमें टाइम देते और फिर हम देखते P पर वो कब पहुंच रहा है और वहां की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, मतलब अब सुनो, v माइनस मैं सब समझ, देखो क्वेश्चन दो टाइप का हो सकता है। एक तो कि इस इंस्टेंट पे बताओ क्या है, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि 3 सेकंड बाद बताओ क्या चले। तो अगर ऐसे होगा तो इन दैट केस पहली बात तो 3 सेकंड बाद उसके थीटा भी निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 3 सेकंड बाद उसका लोकेशन भी तो इधर उधर कहीं और होगा, फिर वहां का लोकेशन, फिर वहां का एंगल एंड सो ऑन। तो देयरफॉर माय सजेशन इज दैट कि अभी जो हमने अभी क्वेश्चन किया था वो था इस इंस्टेंट का वेलोसिटी वेक्टर बताओ, एक्सेलरेशन वेक्टर बताओ। नाउ इफ द क्वेश्चन इज लेट्स से 1 सेकंड पहले बताओ, 2 सेकंड बाद बताओ, तो देन द क्वेश्चन विल बी टोटली डिफरेंट, क्योंकि इन दैट केस उस समय ओमेगा का वैल्यू भी शायद बदल जाएगा। हाँ लोकेशन बदल गया, लोकेशन बदल गया मतलब ओरिएंटेशन और साथ में एंगल भी बदल जाएगा। जरूरी नहीं कि ये 37 डिग्री होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो देयरफॉर लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज।
हाँ, So accordingly we will treat the question. वो तो देखो डेटा गिवन है, तो हम लोग थीटा भी निकाल सकते हैं, हम लोग ओमेगा आफ्टर सम टाइम भी निकाल सकते हैं, हम लोग अल्फा तो खैर कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तो अल्फा तो पता ही। तो अकॉर्डिंगली all the vectors, their orientations, their magnitudes, directions, everything will change. But process यही रहेगा कि एक बार हम वो पॉइंट और वो सब लोकेट कर लिए और वहां का ओमेगा अल्फा जो भी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद प्रोसेस यही होगा जो कि हमने इस सर जो आप थीटा क्लॉकवाइज और more थीटा important part, एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यूज बता रहे थे, वो वाले बता दो। मतलब थीटा क्लॉकवाइज कब लेना होता है, थीटा एंटी क्लॉकवाइज, वो समझा दो एक बार फिर से। थीटा। हाँ सर, आप वो कह रहे थे ना, थीटा क्लॉकवाइज लेना होता है, कब एंटी क्लॉकवाइज लेना होता है। नहीं, थीटा के बारे में तो मैंने बोला ही नहीं, मैंने अल्फा और ओमेगा की बात कर। जैसे अगर मान लो ओमेगा किसी एक डायरेक्शन में है और अगर ओमेगा का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, यानी ओमेगा और अल्फा एक ही डायरेक्शन, और अगर ओमेगा का मैग्नीट्यूड रिड्यूसिंग है, यानी ओमेगा और अल्फा उल्टे डायरेक्शन। ठीक है सर। तो देखो इस केस में बोला रिड्यूसिंग। देखो व्हाई इज हाँ। रिड्यूसिंग एंड इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी देखो मैंने एटी का डायरेक्शन क्या लिया, ये लिया, लेकिन ओमेगा आर का डायरेक्शन देखो मैंने क्या लिया, ये लिया। तो ओमेगा आर का डायरेक्शन ये है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन मैंने ये लिया, लेकिन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये लिया। ये डिसीजन कहां से लिया है, ये रिड्यूसिंग वर्ड से लिया। यही अगर इंक्रीजिंग कर दोगे, इन दैट केस टेंजेंशियल ये जो 20 लिखा है ना, इसको पलट के मैं उधर कर दूंगा, यानी एक्सीलरेशन टेंजेंशियल भी उधर ही हो जाए। दैट इज द वे वी आर सपोज्ड टू लुक एट, ठीक है ना। और फिर उसको मैंने आई कैप जे कैप में कर दिया, वो तो कंपोनेंट्स वगैरह तो 37 डिग्री के हिसाब से कोई ज्यादा मुश्किल जॉब नहीं था, दैट कुड हैव बीन डन इजीली। अशिता से प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन वंस अगेन। देखो अगर मैं ब्रीफली बताऊं, टाइम अप हो चुका है, तो ब्रीफली बताऊं तो क्या हो रहा है, ओमेगा आर क्योंकि इस तरफ घूम रहा है, तो देखो खुद ही रियलाइज करो टेंजेंशियल इधर होगा, तो ओमेगा आर क्या होगा 10, फिर 37 के हिसाब से 53, तो कंपोनेंट्स, तो वो कंपोनेंट्स है। दूसरा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है ना, एक रेडियल, तो रेडियल तो ये वाला है, कितना ओमेगा स्क्वायर आर, तो 50, अब 37 डिग्री कंपोनेंट्स, तो देखो कंपोनेंट्स। और अल्फा आर, अब यहाँ पे क्रिटिकल चीज था कि अल्फा का डायरेक्शन क्या लिया जाए, तो इस बार अल्फा का डायरेक्शन मैंने ओमेगा आर के यानी टेंजेंशियल के डायरेक्शन के उल्टा लिया। क्यों, कि रिड्यूसिंग वर्ड, ठीक है ना, ये चीज। तो देयरफॉर ओमेगा आर टेंजेंशियल इधर लिया, लेकिन अल्फा आर का जो टेंजेंशियल तो मैंने उल्टा लिया। तो अल्फा आर कितना है, अल्फा 10, R2 तो ये 20 हो गया, बाकी एंगल्स के हिसाब से कंपोनेंट तो वो देख रहे हैं, ये टेंजेंशियल वाला, ये रेडियल वाला, बाकी तो आई कैप हो जाएगा, जे कैप को बुलाया एंड कैन गेट आंसर्स, ठीक है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। अशिता, इज दैट ओके ना? यस अशिता, Yes, sir. ओके, चलो ठीक है। I think that's it what we have in time for as far as today is concerned. तो बस हम लोग अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके ऊपर डिस्कशन थोड़ा सा और करेंगे अगले क्लास में, कुछ और चीज को लेके, और इस पूरे सर्कुलर मोशन का एक और राउंड ऑफ डिस्कशन इन वेक्टर फॉर्म दैट विल बी डूइंग इन द 7th चैप्टर। तो देखो इसके लेयर्स ऑफ डिस्कशन, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग एक प्लेनार सर्कुलर मोशन के पर्सपेक्टिव से ET ER लेके हमने डिस्कशन, लेकिन इनके पीछे भी वेक्टर फॉर्म्स है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। सो दैट विल बी अनदर लेवल ऑफ डिस्कशन। तो इसको लेवल्स में डिस्कस करें, ठीक है। हाँ बोलो। अभी अब मतलब एक चीज पूछनी थी, अभी पूछ लो। हाँ जल्दी बताओ। हाँ मतलब कि वेक्टर फॉर्म तो फिर 7 चैप्टर में डिस्कस होगा, 7 चैप्टर तो बहुत लेट हो जाएगा। मैंने पढ़ा हुआ, मेरे को एक बार समझा दोगे कि वो उस साइड क्यों, मतलब क्लॉकवाइज में, मतलब वैसे क्यों लेते? नहीं देखो, वैसे ये जो मैंने ET ER लिखा ना, इनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जब तुम इनको वेक्टर फॉर्म में पढ़ोगे ना, इनका कोई एग्जिस्टेंस, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ET, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ER। अब प्रॉब्लम क्या ना, ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ना, ये ऑलमोस्ट मैंने अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर कि आपने पूरा तो ET और ER से समझाया और अभी आप कह रहे हो कि ET ER कुछ होता ही नहीं है। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट यूज करना नहीं चाहता, बट बिकॉज यू आर रिपीटेडली फोर्सिंग कि मुझे वो वाला चीजें बताओ, इसलिए मैंने बोला देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ET ER, क्योंकि हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में इस टॉपिक को हैंडल नहीं किया, तो वी आर temporarily defining something which we are calling as ET and ER, और कुछ इनके डेफिनेशन सारे अलग तरीके से आएंगे, एक्सियल वेक्टर से आएंगे। so therefore the discussion is actually totally different there, उसमें ET ER कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं, so let's not mix them up,
प्रॉब्लम क्या है कि तुमने वो टॉपिक ऑलरेडी उस फॉर्म में पढ़ लिया है, अब तुम ETR को उनके साथ कनेक्ट कर रहे हो. नो कनेक्शन इज ETR इज टोटली डिफरेंट. ठीक है ना? तो लाइक ETR is just a temporary way of defining things as of now, where we have not described in vector form, but in the form of tangential and radial vector. That's the only thing. लेकिन सर ET तो तब भी होगा, मतलब अगर वेक्टर फॉर्म में भी लिखोगे तो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को वो समझे नहीं, वो एक जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एक्सियल वेक्टर्स होता है ना, उससे ETR खुद सॉल्व होके आ जाएगा. अलग से हमें डिफाइन करने की जरूरत, तुम स्ट्रगल कर रहे हो कि मैं कैसे डिफाइन करूं, डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद से सॉल्व होके आएगा, बट बेस्ड ऑन एक्सियल वेक्टर्स, नॉट नॉर्मल वेक्टर्स. ठीक है, दैट्स द पॉइंट. ठीक है. Chalo. So I think let's curtail the discussion here. Let's stop here then. We'll carry on Monday with a little bit more stuff in circular motion. Some examples maybe we'll take up, and then we will go to a time permitting projectile, or maybe we'll discuss examples on circular motion. Right? Chalo. आज के लिए इतना ही. Have a good day and also enjoy the weekend. आज Friday भी है. Chalo. Bye bye. Thank you, Adhar.